Hi friends, I am Slow and the today topics I have taken from the book of the climatology. It's the most important topic and you all should even know about this topic. This is El Nino and the La Nina. Most important say that it is actually the form of the southern oscillations. Well, I'm going to discuss about it very thoroughly. Very thoroughly, I will just make your concepts more clear about the southern oscillations. First of all, I have just made a map about these, just for making these concepts more clear for you. Well, actually, what really is the El Nino? What really is the El Nino? You have to understand about this one. Before moving forward, I have to make you clear about these topics, about these concepts, what they really is the El Nino. Actually, friends, El Nino is a Spanish, is derived from the Spanish word. It is actually a Spanish word. That mean a little boy. That mean a little boy. El Nino mean a little boy. The name to this climatic phenomena as the little boy. But what really it is? What is El Nino? What really it is? It is actually a climatic phenomena. Atmospheric conditions when there is a variations in the temperatures in the oceanic waters. What is pressure gradients? It is the difference of the pressures between the two places. Well, actually, when we talk about this El Nino, I am going to make it more clear for you. In a normal conditions, in a very normal conditions, the strong trade winds blows from northeast to the southwest to this doldrum. These are actually, you know what, trade winds. These are trade winds. And from the south, they are moving southeast to the northwest. This is the normal conditions. The normal conditions when there is, you know what, when there is low pressure. This is the normal condition when there is a low pressure in this area. When there is a low pressure in this area and it causes the immense, even you just know about that, it causes the immense monsoons in the month of the June and the July over this our subcontinents. This condition just become the reversed when, you know what, when the temperatures becomes very high in the coast of the Peru. This is a Peru country. Peru country. Actually, when the temperatures of the oceanic surface become high in this, it, you know, it just tries to move this water to these area. It tries to replace this water to this area. And दिस वीकन्स द ट्रेड इंड्स. आप ये कह सकते हैं जैसे कि जब मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर अब बढ़ चुका है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सोच लो वहाँ पे लो प्रेशर एग्जिस्ट कर लेता है. यहाँ पे लो एग्जिस्ट हो चुका है और यहाँ पे एक किस्म की ये पूरा का पूरा ये सरफेस ओशनिक सरफेस ये हॉट बन चुकी है. हॉट बन चुकी है कहने का मतलब ये हुआ कि अब ट्रेड विंड जो यहाँ से यहाँ चलेगी, ट्रेड विंड ये किस्म की मॉइस्चर लैंड विंड्स है, वो अब यहाँ से ऊपर इसका नाम इक्वेटर की तरफ चलने की कोशिश करेगी तो कंडेंस हो जाएगी और वहां पे प्रेसिपिटेशन हो सकती है. तो ये एक किस्म की ट्रेड विंड्स को क्या कर देगी, यहाँ पे वीकन कर देगी. यानी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आएंगे, यहाँ पे डिसीजेस होंगी. ये मैं इम्पैक्ट्स इसकी बात करूंगा, इम्पैक्ट्स इसके क्या और इसको कैसे इसको मॉनिटर किया जाता है. विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द एल निनो आर जस्ट ओरिजिनेटिंग. मैंने आपको पहले बता दिया कि जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर की अपवेलिंग्स होगी, वहाँ पे लो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा. लो प्रेशर एग्जिस्ट करने के बाद यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है ट्रेड विंड्स उसको ये वीक करेगा, वहीं प्रेसिपिटेशंस हो जाएगी. और जो ये वाले एरियाज हैं, ये वाले एरियाज में क्या हाई प्रेशर एग्जिस्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर. यानी ये ट्रेड विंड्स जो है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी. ये ट्रेड विंड्स का जो इम्पैक्ट है मॉइस्चर विंड्स जो है ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी. और जब यहाँ पे नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे जो मॉइस्चर साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं जो यहाँ से आती हैं, जो मॉनसूनल विंड्स होती हैं, वो हमारे इंडिया में मॉनसून को या तो डिले कर लेंगी तो या तो
ड्रॉट्स लाइक कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकती हैं राजस्थान जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में, मध्य प्रदेश या और भी अदर अफेक्टेड रीजन्स हैं। और ये हमें बहुत बार देखने को मिला है कि इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के जो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बिलियन डॉलर्स का इसमें नुकसान होता है जब मानसून मतलब डिले हो जाती है हमारे इंडिया में। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे थंडरिंग होगी, स्टॉर्म्स होगी, प्रेसिपिटेशंस होगी, अर्जेंटीना, पेरू, यहाँ पे फ्लड्स लाइक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे। और इसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हैं मलेरिया, डेंगू वगैरह कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशंस होगी। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, इंडोनेशिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो ओशनिक सरफेस है उसका जो कह सकते हैं सी लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये एल नीनो एक्चुअली ये इंडियन मॉनसून को अफेक्ट कैसे कर रही है। पहले मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स जो यहाँ से डोल्ट्रम की तरफ मूव हो रही हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप बनाया था ताकि आपको इजीली तरीके से क्लियर हो सके। स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड यहाँ से ये ब्लो हो रही है। मैंने पहले बता दिया जब यहाँ पे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर की वजह से बारिश नहीं हो जाएगी। जब टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे तो बारिश वहीं हो जाएगी, उनको वीकन कर पाएंगे। वो ट्रेड विंड्स यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी इन एरियाज पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन प्रोड्यूस होगी, हाई प्रेशर हो गया यहाँ पे। और हाई प्रेशर आपको दोस्तों पता ही है, हाई प्रेशर क्या करता है? हाई प्रेशर एयर को सबसाइड्स करता है। हाई प्रेशर्स में एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती है वो स्टेबल होती है। वो क्या होती है? स्टेबल्स होती है। और ये वाले जो एरियाज होते हैं, जो ये वाले इलाके होते हैं, यहाँ पे भी कह सकते हैं आप हाई प्रेशर एग्जिस्ट होता है और मॉइस्चर लेडन विंड्स जो होती है इधर डिले हो सकती है या फिर मॉनसून होगी। 1972, 1997 ये मतलब ये कुछ ऐसी ईयर्स हैं जहाँ पे एल नीनो के इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया गया था और मॉनसून डिले होने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था हमारे इंडिया को। नेक्स्ट वन, एल नीनो तो आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि एल नीनो एक्चुअली है क्या, इम्पैक्ट्स इसके क्या होते हैं। एल नीनो के इम्पैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। एल नीनो के इम्पैक्ट्स अगर कह सकते हैं कि इस ईस्टर्न पैसिफिक में देखा जाए तो एल नीनो के इम्पैक्ट्स साउथ अमेरिका पे, पेरू, अर्जेंटीना पे, यहाँ पे फ्लड्स लाइक कंडीशन, hurricanes and many other disasters. While when we talk about these Western Pacific areas, we can even just feel the disaster like forest fires in the Indonesia, and there are just the droughts in the western sides of the Australia and many other things. And when we talk about this India, the drought like conditions can be existed when there is a delay in the southwest monsoon. You know what? यही कंडीशन अब रिवर्स हो जाएगी। यही कंडीशन अब रिवर्स कैसे होती है मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जब बात की जाती है दोस्तों ला नीना की, ला नीना, इसको अच्छे से समझिएगा, आपको पूरे अच्छे से ये समझ आ सकता है। ला नीना भी दोस्तों एक स्पेनिश वर्ड से निकला हुआ है, स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है दोस्तों लिटिल गर्ल। इट मीन लिटिल गर्ल्स। लिटिल गर्ल्स दोस्तों ये भी जो स्पेनिश के इमिग्रेंट्स थे जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में मतलब माइग्रेट्स हुए थे, उन्होंने इसका नाम रखा है लिटिल गर्ल। ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है और इस कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है, इस कंडीशंस में यहाँ पे लो प्रेशर एग्जिस्ट कर देता है। यहाँ पे अब लो प्रेशर एग्जिस्ट हो जाएगा और यहाँ पे कह सकते हैं पहले हाई था, अब पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि लो प्रेशर था, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कांसेप्ट्स। पहले एल नीनो में क्या था, एल नीनो पे यहाँ पे साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट में लो प्रेशर था जिसकी वजह से ट्रेड विंड वीकन हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। ये कंडीशंस रिवर्स हो रही हैं। ये कह सकते हैं कि दीज फिनोमेना आर जस्ट काज्ड बाय द वेरिएशंस इन द टेम्परेचर्स। यहाँ पे जब लो प्रेशर एग्जिस्ट हो चुका है तो लो प्रेशर आप देख सकते हैं कि प्रेशर्स में टेम्परेचर ज्यादा होगा और लो प्रेशर की वजह से मॉइस्चर्स होते हैं जो ज्यादा निकलेंगे ओशंस की सरफेस में से। और यहाँ पे एज कंपैरिजन टू द सिचुएशंस, यहाँ पे हमारे इंडिया में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड विंड्स की वजह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बारिश होने के चांसेस बढ़ गए। और दोस्तों अब कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पे लो प्रेशर एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड है वहां पे 2010 में बहुत ही बड़े दैट इज फ्लड्स।
कई लोगों को माइग्रेट होना पड़ा था और कई नुकसान उठाना पड़ा था। इंडोनेशिया में फ्लड्स आएंगी, ये इसकी वजह से यहाँ से अब विंड क्या होगी, रिवर्स चलेगी। अब विंड इस तरीके से चलेगी, काउंटर प्लांट्स चलेंगे अब यहाँ पे, और यहाँ से कह सकते हैं ह्यूरिकेन्स कैरिबियन सी, दैट इज अ कैरिबियन सी, दैट इज अ कैरिबियन सी। आई यूज्ड टू टीच वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स द क्वालिटी अबाउट द करंट, दैट इज अ कैरिबियन सी। ये कैरिबियन सी है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अब ह्यूरिकेन्स आएंगे, बहुत सारे डिजास्टर्स आएंगे, और इस जगह पे कौन सी ऐसी कंडीशन, यहाँ पे अब ड्रॉट्स आएंगे। अब साउथ अमेरिका में ड्रॉट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे हाई प्रेशर एग्जिस्ट हो चुका है, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे डिजास्टर्स आएंगे जैसे कि ड्रॉट्स आएंगे, और फॉरेस्ट फायर्स की जो केसेस हैं वो अब इनको उठाना पड़ेंगे। मॉनिटरिंग की बात करूँ मैं, मॉनिटरिंग अब इन दोनों जो क्लाइमेटिक, दीज आर क्लाइमेटिक फिनोमेना दैट इज कॉज्ड बाय वेरिएशंस इन टेंपरेचर्स एंड द प्रेशर्स। अब बात की जाए कि मॉनिटरिंग इनको कैसे किया जाता है, कैसे मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ एल नीनो एंड ला नीना, मॉनिटरिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज बॉय, BUOY, बॉय। एक्चुअली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जिसको एक सी में प्लेस्ड किया जाता है, एक सी में रखा जाता है, और दोस्तों ये क्या करता है, ये वहाँ पे जो सी की टेम्परेचर्स होते हैं, जो सी के कह सकते हैं कि टेम्परेचर्स है ओशनिक सरफेस का, और ह्यूमिडिटी है, उसको नापने का काम करता है बॉय। द नेक्स्ट वन ONI में दोस्तों हमको देखने को मिला है कि इसमें जो एल नीनो के जो एपिसोड्स होते हैं उसको फोरकास्ट किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। दीज वर टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज फॉर मॉनिटरिंग this climatic phenomena, El Nino and the La Nina. And the next one I told you about already I have discussed about that how it impacts the various countries in these northern and southern hemisphere. Well, this concept is very easy. It's not so tough that it will makes you confused once. I already told you how it's affecting the other countries and how it is weakening the trade winds, that is mainly causing the various humidities and the precipitations in the various regions. Well, these was about the El Nino and the La Nina. How you like this video, how you just enjoy this video. Maybe it just made your concepts very clear. And the next video, if I got the times, I will make on some important topics of the climatology. Jai Hind.